Hello and welcome to my channel. My name is Ravi Baseen and I'm an IELTS tutor. Today in this video lecture, I'll be discussing some of the most common spelling mistakes which people make while writing English. And it is not only non-native users who make these mistakes, sometimes even native users make these mistakes. Spelling mistakes can prove very costly in the IELTS exam. Sometimes spelling mistakes can bring down your score by half or even one band. So I hope you understand, you realize the importance of writing the correct spelling of every word. Many of my students ask me how they can get rid of spelling mistakes. Please remember that there's only one way to get rid of your mistakes, to correct your mistakes, and that way is to have a separate copy for mistakes and to note down every mistake that you make in that copy along with the correction and a short explanatory note. So I hope that after this lesson, you will stop making these spelling mistakes which I'm going to discuss, and you will become more aware about spelling. So let's get down to work. Let's start the lesson. This lesson is again in the form of a test. I'll speak each word at least 3 times, and you have to write the correct spelling of that word on a sheet of paper, and after a few seconds, the word will appear on the screen. Give yourself 1 mark for every word that you write correctly and a 0 for every mistake you make, so that you can calculate your score out of 30 at the end of the test. So here we go. The first word is millennium, a period of 1000 years. Millennium, millennium. Here it is. याद रखें कि मिलेनियम में डबल एल और डबल एन यूज होता है. इट मीन्स अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स. 10 साल के पीरियड को बोलते हैं डेकेड, 100 साल के पीरियड को बोलते हैं सेंचुरी, और 1000 साल के पीरियड को बोलते हैं मिलेनियम. एग्जाम्पल, माई ग्रैंडफादर लिव्ड लॉन्ग इनफ टू सी द न्यू मिलेनियम. द नेक्स्ट वर्ड इज separate, separate, separate. Okay, here it is. याद रखें कि separate में पहले E, फिर A, फिर A और फिर E यूज होता है. E, A, A, E. इसका मतलब होता है इन डिफरेंट स्पेस, अलग अलग. द लैंग्वेज डिपार्टमेंट एंड द म्यूजिक डिपार्टमेंट आर इन 2 सेपरेट बिल्डिंग्स. द नेक्स्ट वर्ड इज गारंटी, गारंटी, गारंटी. ओके, डिड यू गेट इट राइट? गारंटी लिखने में बहुत सारे लोग टी डबल कर देते हैं, लेकिन याद रखें गारंटी में टी सिंगल होता है और सिर्फ ई डबल होता है. गारंटी का मतलब है अ प्रॉमिस दैट समथिंग विल बी डन और विल हैपन. खास तौर पे जब कोई कंपनी आपको रिटन प्रॉमिस देती है कि अगर उनके प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट या डिफेक्ट पड़ जाए तो वो उसे रिपेयर करके देंगे या चेंज करके देंगे. Example, this mobile phone comes with a 2-year guarantee. The fourth word is warranty, warranty, warranty. Here's the word. याद रखें कि वारंटी में डबल आर यूज होता है और एंड में डबल ई नहीं बल्कि वाई यूज किया जाता है. वारंटी इज एन एश्योरेंस गिवन टू द बायर बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ अ प्रोडक्ट दैट इट इज जेन्युइन. गारंटी और वारंटी का लगभग सेम ही मतलब होता है और इन्हें इंटरचेंजेबली भी यूज किया जाता है. थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि गारंटी ओरल भी हो सकती है लेकिन वारंटी रिटन ही होती है. दूसरी बात कि रिटन गारंटी में पैसे वापस हो सकते हैं, लेकिन वारंटी में सिर्फ रिपेयर हो सकती है या प्रोडक्ट रिप्लेस हो सकता है, पैसे वापस नहीं हो सकते. एग्जाम्पल,
My car is still under warranty. The next word is privilege. इसका मतलब होता है special right. Privilege. 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 Okay, this is it. याद रखें कि privilege में पहले दो जगह पर I और फिर दो जगह पे E यूज होता है. I, E, E. प्रिविलेज का मतलब है अ स्पेशल राइट और एडवांटेज, कोई ख़ास फैसिलिटी जो कुछ लोगों को ही मिलती है. एग्जाम्पल, एज एन एक्स आर्मी मैन ही एन्जॉयज मैनी प्रिविलेजेस. द नेक्स्ट वर्ड इज प्रोफेसर. 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 And here's the correct spelling of this word. याद रखें कि प्रोफेसर में सिंगल F और डबल S यूज़ किया जाता है. प्रोफेसर का मतलब है अ सीनियर टीचर इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी. फॉर एग्जाम्पल, आवर हिस्ट्री प्रोफेसर हैज़ अ ग्रेट स्टाइल ऑफ टीचिंग. द नेक्स्ट वर्ड इज withhold. 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 Okay, did you get it right? Remember the double H in this word. With का H भी रखना है और hold का H भी यूज़ करना है, तो H डबल होगा इस वर्ड में. इसका मतलब होता है to refuse to give something or to keep something back. For example, he is withholding important information from the police. Number 8 is rhyme. इसका मतलब होता है साउंड्स का मैच करना. Rhyme. Rhyme. Okay, rhyme की स्पेलिंग है RHYME. राइम का मतलब होता है टू एंड विद द सेम साउंड. फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड बग राइम्स विद जग. इसका एक मीनिंग और होता है अ शॉर्ट पोएम स्पेशली फॉर यंग चिल्ड्रन. फॉर एग्जाम्पल, आई स्टिल रिमेंबर ऑल द नर्सरी राइम्स आई लर्नड एट स्कूल. अगला वर्ड है रिदम. इसका मतलब होता है ताल या लय. Rhythm. 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 और इसके करेक्ट स्पेलिंग है RHYTHM. प्लीज नोटिस कि इस वर्ड में एक भी वॉवल नहीं है. मतलब A, E, I, O, U इनमें से कोई भी वॉवल इस वर्ड में नहीं है. There are very few 6-letter words in English language without any vowels, and the remaining words like this are not very popular. So it's a very unique word. इसका मीनिंग होता है a strong, regular, repeated pattern of movement or sound, ताल या लय. For example, I love the slow rhythm of this song. The next word is mischievous. मतलब कि शरारती. Mischievous. Mischievous. And here's the spelling of this word. ये वर्ड mischievous नहीं है बल्कि mischievous है. ध्यान से देखें, V के बाद I नहीं है. लोग इसे गलत प्रोनाउंस करते हैं, इसीलिए फिर स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाती है. It is not mischievous, it is mischievous. It means naughty. For example, my son is very mischievous. The next word is tough. The word is maneuver. इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बड़े हुनर के साथ कंट्रोल करना. Maneuver.
maneuver, maneuver. And here is the spelling of this word. This may be one of the hardest words to spell in English. You have to remember the O-E-U if you want to spell it correctly. But Americans don't use O, so they spell it like M-A-N-E-U-V-E-R. Instead of R-E, they write E-R. Maneuver means to move or control something cleverly and skillfully. किसी चीज़ को बड़े हुनर के साथ चलाना या काबू करना. For example, he maneuvered the car into a parking space. Okay, next word is mustache or mustache. मूंछ को बोलते हैं mustache or mustache. Mustache, mustache. Here's the word for you. M-O-U-S-T-A-C-H-E. इसको ब्रिटिश कहते हैं मस्टाश और अमेरिकन्स कहते हैं मस्टैश. ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में लेटर ए की साउंड बहुत से वर्ड्स में डिफरेंट है. जहाँ इंग्लिश स्पीकर्स आ की साउंड यूज़ करते हैं, वहाँ अमेरिकन स्पीकर्स ए की साउंड प्रोड्यूस करते हैं. जैसे कि मास्क, मैस्क, task, task, can't, can't. Example, example. Ask, ask. Chance, chance. Mustache का मतलब है hair grown above the upper lip, mooch. Example, I am thinking of keeping a mustache. Word number 13 is beneficial. मतलब कि फायदेमंद. Beneficial, beneficial. And the correct spelling of this word is B-E-N-E-F-I-C-I-A-L. पहली बात तो ये याद रखें कि बेनिफिट शुरू होता है B-E-N-E से, ना कि B-E-N-I से. दूसरा, बेनिफिशियल के एंड में CIAL यूज होता है. बेनिफिशियल मीन्स एडवांटेजस, प्रोड्यूसिंग गुड रिजल्ट्स, फायदेमंद. फॉर एग्जाम्पल, रेगुलर एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल टू हेल्थ. द नेक्स्ट वर्ड इज इन्फ्लुएंशियल. मतलब कि प्रभावशाली, जिसका असर हो, प्रभाव हो. इन्फ्लुएंशियल, influential, influential. And here's the spelling of influential. याद रखें कि influential के एंड में TIAL यूज होता है. देखें, दोनों beneficial और influential जो हैं, उनके एंड में साउंड है शल की, लेकिन beneficial में CIAL और इन्फ्लुएंशियल में TIAL यूज होता है. इन्फ्लुएंशियल मीन्स हैविंग ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन समवन और समथिंग. प्रभावशाली, जिसका लोगों पर बहुत असर हो, जिसकी बात लोग सुनते हों और मानते हों. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ वेरी इन्फ्लुएंशियल मैन इन द गवर्नमेंट. नेक्स्ट वर्ड थोड़ा मुश्किल है. द वर्ड इज मिसलेनियस. मिसलेनियस, मिसलेनियस. And here's the spelling of this word. Miscellaneous का मतलब होता है of various types or from different sources. अलग अलग तरह की चीज़ें जिन्हें किसी एक कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता. इस वर्ड को आमतौर पर शॉर्ट फॉर्म में यानी MISC लिख दिया जाता है. एग्जाम्पल, माई बॉस गेव मी सम मनी टू कवर एनी मिसलेनियस एक्सपेंसेस.
नेक्स्ट वर्ड है रेपिटिशन, किसी चीज़ का बार बार होना। रेपिटिशन, रेपिटिशन। एंड हियर्स द वर्ड फॉर यू। याद रखें कि रेपिटिशन में पहले दो जगह पर ई और फिर दो जगह पर आई यूज होता है। Repetition means the act of doing or saying something again. For example, there is too much repetition in his writing. Same themes को वो बार बार दोहराता है। The next word is amateur. ऐसा बंदा जो किसी काम को शौकिया तौर पर करता है, पैसे कमाने के लिए नहीं। I'll repeat the word for you. Amateur. Amateur, amateur. And here's the correct spelling of this word. Amateur is a person who does something for pleasure and not for earning money. वो बंदा जो कोई काम जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग वगैरह एज अ हॉबी करता है, ना कि पैसे कमाने के लिए। इस वर्ड का एक और मतलब भी है और वो है अनाड़ी। अगर आप कहना चाहते हैं कि किसी बंदे में ज़्यादा स्किल नहीं है कोई काम करने की, तो उसे भी आप एमेचर कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ एन एमेचर पेंटर। द नेक्स्ट वर्ड इज नीस, भांजी या भतीजी। नीस, नीस। और इसको स्पेल करने का तरीका NIECE। इस वर्ड में स्पेलिंग का वही रूल फॉलो होता है, I बिफोर E एक्सेप्ट आफ्टर C। नीस मीन्स द डॉटर ऑफ योर ब्रदर और सिस्टर। फॉर एग्जाम्पल, I have a niece who lives in Canada. नेक्स्ट वर्ड है perseverance, perseverance, perseverance। Here's the word for you. याद रखें कि इस वर्ड के एंड में ANCE आता है, ENCE नहीं। परसिवेरेंस का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ नॉट गिविंग अप एंड कंटिन्यूइंग टू मेक एफर्ट्स टू अचीव अ गोल। लगे रहने की क्वालिटी, हालांकि काम मुश्किल है फिर भी जो इंसान हार नहीं मानता और लगा रहता है, उसमें होती है परसिवेरेंस। मैनी एक्सपर्ट्स बिलीव दैट परसिवेरेंस इज मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन टैलेंट। वर्ड नंबर 20 है कंसेंसस, कंसेंसस, कंसेंसस। एंड हियर इज द स्पेलिंग ऑफ कंसेंसस फॉर यू। याद रखें कि ये वर्ड शुरू तो सी से होता है, लेकिन आगे 3 जगह पर एस यूज किया जाता है। कंसेंसस मीन्स एग्रीमेंट, सहमति। फॉर एग्जाम्पल, they discussed the matter for hours but could not reach a consensus. अगला वर्ड है डम्बेल, एक्सरसाइज करने के लिए एक प्रकार का वेट। डम्बेल, डम्बेल। तो याद रखें कि डम्बेल में डबल बी आता है, डम का बी भी रहेगा और बेल का बी भी ऐड करना है। इट मीन्स अ टाइप ऑफ फ्री वेट यूज्ड इन बॉडी बिल्डिंग। एग्जाम्पल, आई लाइक टू वर्क आउट विद डम्बेल्स। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज ज्वेलरी, ज्वेलरी, ज्वेलरी।
इस वर्ड के दो डिफरेंट स्पेलिंग हैं. इसको ब्रिटिश लोग लिखते हैं JEWELLERY और अमेरिकन इसको लिखते हैं JEWELRY. तो याद रखें कि इस वर्ड को लिखने के लिए या तो एंड में LRY यूज़ करें या फिर LLERY यूज़ करना पड़ेगा. Jewelry means ornaments like necklaces and rings made from precious metal. Example, my wife is not very fond of wearing jewelry. अगला वर्ड है सरनेम. आपका फैमिली नेम जैसे कि गुप्ता, कपूर, संधू एट्सेट्रा. सरनेम. जी ठीक लिखा आपने. याद रखें कि सरनेम में SUR यूज़ होता है ना कि SIR. सरनेम का मतलब है द लास्ट पार्ट ऑफ योर नेम, योर फैमिली नेम. फॉर एग्जाम्पल, कैन यू स्पेल योर सरनेम प्लीज? द नेक्स्ट वर्ड इज प्ले राइट. नाटक लिखने वाला. प्ले राइट. प्ले राइट. Here's the word for you. याद रखें कि इस वर्ड में लिखने वाले राइट के स्पेलिंग WRITE यूज़ नहीं किए जाते बल्कि WRIGHT यूज़ किए जाते हैं. Playwright means a person who writes plays, a dramatist. Example, William Shakespeare is the most famous playwright in the world. अगला वर्ड है पब्लिकली. पब्लिक के सामने पब्लिकली. पब्लिकली. Here's the word for you. याद रखें कि बस पब्लिक लिखने के बाद सिर्फ LY लगाना है. इस वर्ड में CALLY नहीं लिखा जाता. Publicly means in public, openly. Example, he publicly apologized for his mistake. अगला वर्ड है recommend. 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 और ये है recommend के सही स्पेलिंग. Remember to use double M when you write this word. Recommend means to say that something is good and should be chosen or done. किसी चीज़ को बढ़िया बताना या उसकी सिफारिश करना. For example, the doctor recommended that I lose some weight. अगला वर्ड है relevant. 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 Okay, did you get it right? याद रखें कि इस वर्ड के एंड में ANT यूज होता है ना कि ENT. Relevant means related to a subject, situation or discussion. संबंधित, जिसका लिंक है हमारी बात से या डिस्कशन से या किसी सिचुएशन से. फॉर एग्जाम्पल, योर पॉइंट इज नॉट रेलिवेंट टू आवर डिस्कशन. अगला वर्ड है लाइसेंस. 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 एंड हियर इज द वर्ड फॉर यू. इस वर्ड को दो तरह से लिखा जाता है, एक ब्रिटिश इंग्लिश में और दूसरा अमेरिकन इंग्लिश में. याद रखें कि पहली जगह पर C आता है और दूसरी जगह पर C या S दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं. लाइसेंस मीन्स एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट that gives you permission to own, do or use something.
Example, my father will allow me to drive only after I get my driver's license. अगला वर्ड है जी मैरिजेबल, शादी के लायक, मैरिजेबल, मैरिजेबल. And this is how you write this word. याद रखें कि इस वर्ड में एबल लगाने से पहले मैरिज के एंड वाला ई हटाना नहीं है, उसे रखना है. मैरिजेबल मीन्स फिट और सुटेबल फॉर मैरिज, शादी के लायक. एग्जाम्पल, ही इज अ वेल्दी मैन ऑफ मैरिजेबल एज. And the last word is advisable. 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 And here's the word. इस वर्ड में एबल लगाने से पहले एडवाइस के एंड वाला ई हटाना है. एडवाइजेबल मीन्स सेंसिबल, वाइज, समथिंग दैट शुड बी डन, रेकमेंडेड. अगर आप वो करेंगे तो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी और डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा. एग्जाम्पल, इन केस ऑफ हाई फीवर it is advisable to visit a doctor. Okay, that's the end of this test cum lesson. I'll be very curious to know your score out of 30. So please write that in the comments section below. And do give me a thumbs up if you liked this series on common spelling mistakes in English. I'll see you soon with another video lesson.